محمد ملک۔ جھنگ ہمارا شہر بڑے مسائل، لیکن توجہ ان طبقات پر جو پہلے ہی بہت خوشحال ہیں۔ جنگ جم خانہ اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن عام جو عوام تھی میرے خیال میں اس پہ مسائل جو ہے ہمارے قابلین کی کم ہے، ان پہ توجہ کم ہے۔ اسی طرح اگر دوسری طرف دیکھیں تو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی بہت ساری، لیکن نہ پرائس کنٹرول ہوئی اور نہ کمیٹیاں کنٹرول ہو رہی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید اختر چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کیا حال ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ چودھری صاحب خوش قسمتی سے کہیں یا بدقسمتی سے کہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور آج ہم ان سے دو موضوعات پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو قابلین ہیں جو اس ضلع کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اس ضلع کے کسٹوڈین ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسٹوڈین سے زیادہ کچھ ہیں۔ تو سب جنگ جم خانہ مطلب یہ مجھے ایک بات ٹھیک ہے لفظ ہوتے ہیں بہت سارے شہروں میں بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ توجہ جو ہے نا ضلعی انتظامیہ کی اس طرف زیادہ ہے، حتیٰ کہ دیکھا جائے کہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ تو بہت مائنر سے ہیں، بہت کم سے لوگ ہیں جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا پچھلے دنوں بہت سارے ایسا ہوا جو پچھلے ڈی سی صاحب تھے، جو پچھلے جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل کی، سوئمنگ پول شامل اس میں چلا گیا، نادر آفس اس میں چلا گیا، نیشنل بینک اس میں چلا گیا، جو سائیکل سٹینڈ بنایا گیا تھا، جو سٹینڈ بنایا گیا تھا موٹر سائیکل سٹینڈ وہ بھی اس میں چلا گیا۔ تو اس سے الٹا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا ہے، جو ہمارا ضلعی بجٹ تھا، جو ضلعی آمدن تھی، اس کو نقصان ہوا ہے۔ آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بڑی گرپ ہے اس معاملات میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، مجھے آپ نے یہاں انوائٹ کیا۔ ملک صاحب ایسے ہے کہ یہ جو جم خانہ یا آفیسرز کلب یا دوسرے کلب بنائے جاتے ہیں، یہ انگریز دور میں انگریزوں نے شروع کیے تھے اپنی سیر و تفریح کے لیے، اپنے مل بیٹھ کر گپ شپ کے لیے۔ پھر انہوں نے اس میں جو ہمارا یہاں کا الیٹ طبقہ تھا اس کو شامل کرنا شروع کر دیا، جیسے وکلا تھے، جاگیردار تھے، بڑے بڑے زمیندار یا سیاستدان تھے، ان کے ساتھ اپنا ریلیشن بنانے کے لیے، اور تاکہ وہ آگے جو لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ کم تر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک گیپ پیدا کیا جائے۔ وہ یہ کہیں جی فلانے کلب کا وہ ممبر ہے، ایک اپنا کہہ لیں جیسے آپ اسٹیٹس سمبل جو ہے اسے بنانے کے لیے ٹور ہونی چاہیے، لش پش واسطے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جنگ میں جو آفیسر کلب ہے اس کو انہوں نے جم خانہ میں تبدیل کر دیا۔ سابق ادوار کی آپ نے بات کی، جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے جنہوں نے یہ شروع کیا تھا، صرف نہ صرف جنگ میں، اسی طرح سرگودا اور دوسرے شہروں میں بھی یہ 6-7 جم خانہ شروع ہوئے۔ چاند پہلے وہ آفیسر کلب تھے لیکن ان کو جم خانہ کا نام دے دیا گیا۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کیونکہ بھائی تھے کالونی ممبر، کالونی بورڈ آف ریونیو میں، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کے بھئی ہم اس طرح زمین جو ہے اس کی کم ہے، اسے میں بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ کیا جائے۔ اب آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی زمین ہے، ضلع کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل جسے ہم کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل کہتے تھے، بعد میں ضلع کونسل کہنے لگے، اور یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے، جس میں یہ آپ کا آفیسر کلب بھی اس کا کرایہ دار ہے، آپ کا پریس کلب بھی اس کا کرایہ دار ہے۔ اس کے بعد جو جتنی بھی جگہ تھی، نیشنل بینک تھا، جہاں پہلے ایک لائبریری ہوتی تھی، اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ بنا، پھر اس کے بعد نادرا کا آفس بنا، اس لائبریری کو ختم کر کے جھنگ سٹی شفٹ کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں بہت سارا جو لوکل گورنمنٹ کو اور ضلع کونسل کو جو فنڈ آتا تھا کرایہ، جو اس کے بجٹ میں ہماری ڈیولپمنٹ پہ، ہمارے دیہات کے جو رورل ایریا ان کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا تھا، وہ کافی سارے جو ہمیں لاس ہوا ہے اس میں کرائے کی مد میں ہوا۔ جیسے کہ نیشنل بینک ہے وہ ختم ہوا، اس کی جو بلڈنگ تھی تقریباً جو ہے وہ 14 لاکھ جو ہے سم تھنگ جو ہے وہ کرایہ تھا اس کا، 14 لاکھ سے کچھ زیادہ تھوڑا ماہانہ۔ اسی طرح جو ہے نیشنل بینک ہے اس کا بھی اسی طرح 16 لاکھ کے قریب تھا کرایہ۔ اسی طرح پہ اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا چائنا گریل کے نام سے، اس کا بھی 25-30 لاکھ روپے کرایہ تھا۔ پھر اسی طرح ایک سائیکل سٹینڈ تھا، سائیکل سٹینڈ پہ بھی تقریباً 50 لاکھ روپے سالانہ ٹھیکہ ہوتا تھا، اس کو بھی نقصان ہوا، اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر جو سوئمنگ پول تھا وہ پبلک کے لیے ہوتا تھا، اس کے بھی چارجز ہوتے تھے، اسے بھی ضم کر دیا گیا، اور ساری جگہ جو ہے یہ اسے ڈب کر کے چھوٹا کر دیا گیا۔ سائیکل سٹینڈ کو بھی چھوٹا کر دیا گیا، نیشنل بینک چلا گیا یہاں سے، وہ تھوڑا دور پڑ گیا، پبلک کی اپنا گرفت میں تھا۔ اس کے بعد ایک آپ کو اور بتاؤں جو دلچسپ بات ہے، کہ جو سرکٹ ہاؤس ہے اس کو بھی جم خانہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔
अब जिस कानून के तहत ये बनाया गया है, ये अभी लोगों को नहीं पता चल के, कुछ अरसे बाद आपको इंकशाफ होगा कि उस वक्त सीईओ थे हमारे जिला कौंसिल के, और जो खातून हमारी जो ऑफिसर थी, उनसे ये जबरदस्ती साइन करवाए गए थे उस ऑर्डर पे। चलिए, ये तो एक जैसे जिस तरह आप बता रहे थे कि चलिए हम ये कहते हैं कि मतलब ये कितना किराया था, क्या सूरत-ए-हाल थी, पैमाना कितना था, कम और बेश हो सकता है इसमें, ज़ाहिर फिगर है, आदाद-ओ-शुमार है, लेकिन बात ये है कि इसमें जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हुआ। जी। यानी कि ज़िला काउंसिल आम शहरी एक का भी आम हुआ। शहरी का नुकसान हुआ। उस वजह ये है कि आम शहरी का नुकसान इस वजह से हुआ कि वो जितना पैसा या फंड जो इकट्ठा होता था वो यकीनी तौर पे फलाही मंसूबों पे लगता था या आवाम के इस्तेमाल में आता था। ये मैं समझता हूँ कि आप इस पे क्या कहेंगे कि जिस तरह अब ये स्विमिंग पूल है, अब पिछले जो टर्नओवर से में 2-3 साल पहले मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं होगा भाई कितने करोड़ का वो फंड जारी हुआ था जिसके लिए 10 करोड़ रुपए। हाँ, हाँ, शायद मेरे ज़हन में नहीं है इस वक़्त। तो वो मतलब वो अवाम का पैसा वहाँ पे लगाया गया और एक छोटी-सी एलीट क्लास के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? आखिर इनकी तवज्जो जो है अपनी फलाह-ओ-बहबूद पे और फिर उसी में देखिए मज़े की बात क्या है, आप इस पे थोड़ा मुझे रोशनी डालिएगा कि उसी जंग जिमखाना में आके आपके सियासतदान भी बैठ रहे हैं, आपके वुकला भी बैठ रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी बैठ रही है, तमाम एलीट क्लास में जो तकरीबन मेरे ख्याल में कितने होंगे 2% होगा जंगी आबादी का। लेकिन जंग इतनी सलाख आबादी के जो मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज करके इतना पैसा इस पे लगा दिया गया। तो इस पे आप कहेंगे उसकी वजह क्या है? क्यों लगाया गया? उसमें एक तो पहले बात ये है, इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो लेडीज क्लब होता था खवातीन के लिए, जी, जी। उसको भी इस बीच में ऐड कर दिया गया है। सही, सही, सही। उसमें थोड़ी सी पार्किंग शामिल कर दी गई है, बाकी वहाँ रेस्टोरेंट को जगह दे दी गई है, जो अंदर और रेस्टोरेंट पार्किंग की सूरत-ए-हाल है तो साहब हमें कुछ कह रहे 4 चफेरे जनाब चार मोटरसाइकिल पार्किंग 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 मुकदी नहीं ठीक है साहब। ना जी। और वो अच्छा। चंद लोगों को नवाजने के लिए हुँ, उसमें भी एलीट क्लास है, उसे दे दिया गया है। हुँ, अच्छा, इसमें ये मैं जो आपने बात कही कि क्यों किया जाता है, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम अगर बैठेंगे ऑफिसर्स में या बड़े लोगों में बैठेंगे या सियासतदानों के पास बैठेंगे, जजेस के पास बैठेंगे, हुँ, तो शायद हमें हुँ, कोई बहुत सारे इसके मराहत मिलेंगे, कोई फायदे होंगे लोगों में, हुँ, हमारा इज्जत बढ़ेगी या हुँ, हमारी लचपच होगी, हुँ, तो हमारे लोगों का इमेज जो है बड़ा अच्छा जाएगा। हुँ, ये चंद लोगों की होती है, मतलब आप देख लें कि 600-700 के करीब मेंबरान है। हुँ, पहले भी इसी तरह मेंबर होते थे, 200-250 मेंबर होते थे और हुँ, ₹100 फीस होती थी। हुँ, सबसे पहले जो इसकी फीस थी, इसके आइन के मुताबिक, मेरे पास आइन पड़ा है पुराना, उसकी ₹1 फीस थी। सही। ऑफिसर क्लब जब होता था ये भी, ठीक है, अंग्रेज दौर जैसे में। भेकुर को ये कराओ सारे बन जाते हैं। ठीक है ना, ₹1 वाली फीस थी। फिर अरशद भट्टी साहब एक डीसी आए थे, जी, बहुत जी। हो गए वो, हुँ, गोरे वाले के थे। एक तो ये अरशद भट्टी है, उससे पहले एक अच्छा अरशद पहले भट्टी साहब आए पुराने थे। जी, जी। 97 की बात है, 8 की बात है। जी, तो जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइन मंगवा के उसे ₹1 की जगह फिर उन्होंने एक ₹100 की थी। हुँ, फिर उसके बाद उन्होंने ₹500 की, ने हुँ, उसका आइन चेंज किया। हुँ, तो उस चंद जो तबका है जिसमें आप कह रहे हैं एलीट क्लास आप कह सकते हैं या नौदौलतिये कह सकते हैं, हुँ, उसको नवाजने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सारा सिलसिला किया। हुँ, आप देख लें कि उन मेंबरशिप में उनके जो अहदेदारान हैं, पहले है उन्होंने शादियां करवा करवा के यहाँ पर शादी हॉल बनाकर जो पैसे कमाए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हुँ, उससे पहले जो इन्होंने इनकम की है स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवा के या दूसरे हुँ, मेंबरशिप की, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब भी वहाँ मेंबरान में ये तफस पाया जाता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, हुँ। क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर जो है वो चले जी वो इलेक्शन कराया ना कराया उन्ना करे बाकी 2 तो इलेक्शन वो सिर्फ करा अपने लेंगे। प्रोजेक्शन के लिए हाँ, बनाए जाते प्रोजेक्शन हैं। के लिए उसमें आम आदमी जो है वो तो सफर वो कर रहा है, आम आदमी उसकी तो तो फायदा ही मुस्तफीद नहीं नहीं है। हो पा रहे हैं, रोला ये नहीं है भाई करावट ना करावट हाँ साड़ा जी। वाला कोई तलक नहीं है। अब जिस तरह बात कर रहे हैं आपके भाई इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हमें उससे क्या ताल्लुक है ना आपको मुझसे उसको हमें कोई उससे फायदा है। असल में देखने की चीज़ ये है कि जिस तरह हम बात करते हैं कि आमतौर पर हमारे ताजरान अंजुमन ताजरान के बहुत सारे लोग उस क्लब के मेंबर हैं और इस तरह हम सियासतदानों की बात करें बहुत सारे वो भी लोग होंगे मुझे नाम तो ज़्यादा याद नहीं है। क्यों तो पता मैं तो गरीब या बंदा मैं तो भाई पैसे भर ही नहीं सकता। रोला ये है कि ये तमाम लोग जो हैं वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि हम आवाम के फलाह बहबूद के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि ये जितनी ज़मीन ज़ब्त की गई है या जितने जो उसमें ऑफिसेज़ ज़ब्त किए गए हैं, इससे अवाम को कितना नुकसान हुआ उनके पास आदाद-ओ-शुमार नहीं है भाई साहब? बिल्कुल है, आप तो पता है हमको, लेकिन वो कहते हैं कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह इन्होंने आंखें बंद की हुई ये है क्योंकि बिल्ली के उनके लिए कबूतर मफादात केड़ा है? उन्होंने बिल्ली के लिए कबूतर केड़ा है? अब जाहिर है, अब आप और मैं जो है वो अच्छा छोड़ दे इस बात उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत छोड़ नहीं दे है। छोड़ दे छोड़ अब दे। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारा जो आपने बताया कि अंजुमन ताजरान है या लीड तबका है हुँ, या ऑफिसर्स हैं हुँ, या वकला हैं या दूसरे लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हुँ, अब वो हमारी तरफ जिस नजर से देखते हैं आम आदमी को, वो आपको पता ही है। पता ही है। ठीक है ना, वो सिर्फ जमखाना नहीं, और भी सूरत और भी बहुत सारी जगह जो है उसमें वो समझा जाता है कि ये सिर्फ ये एलीट क्लास के लिए या चंद लोगों के लिए है। हुँ,
हालांकि ये चीजें जो होती हैं ये आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च होनी चाहिए, ना कि चंद लोगों के ऊपर 600-700 रुपए। आप 10 लाख रुपए मेंबरशिप कर दें, 75,000 से एकदम 10 लाख रुपए मेंबरशिप कर दें, और जो मेंबरशिप लेनी हो आप कहें लोगों को झूठ के बुनियाद पर कि जी ये चिनाब क्लब फैसलाबाद से एफिलेट हो गया है, लाहौर जिमखाना से एफिलेट हो गया, कराची से। चलिए जी, अच्छी बात है ये न्यूयॉर्क क्लब से भी एफिलिएशन हो जाए, इससे हमारा इससे कोई आवाम वो को हुआ फायदा नहीं है नहीं ना है। जी, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, फायदा नहीं है हमें इससे। अच्छा, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे वो लोग भी मेंबरान हैं, आप लेकिन आप भी कुछ कमेटियों के मेंबर हैं चौधरी साहब, जी और हम देखते हैं कि वो कमेटियां भी मतलब जो है ना उतनी हैं कि जितनी कागजों में है। बिल्कुल। तो ये देखेंगे प्राइस कंट्रोल कमेटी के बारे में बात करते हैं, अवाम की जो है ना वो किसी अगर पंजाबी जाते हैं तो पंजाबी हाल है तो अवाम का बुरा हाल है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल नदार है। बिल्कुल। मतलब वो कमेटियाँ एक तो बनाई जा रही हैं, को समझ नहीं लगती कि वो कमेटियाँ हैं कितनी, वो कितने प्राइस बोर्ड मजिस्ट्रेट हैं, वो प्राइस मजिस्ट्रेट करते क्या हैं, वो कहाँ से हैं। और एक हमने कई दफ़ा देखा है कि उनका सूरत हाल इस किस्म की है कि एक-एक दुकान को एक-एक दिन में 3-3 बार जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। एक सुबह लिस्ट हमें आ जाती है इन्फॉर्मेशन ऑफिस से कि ये आज के रेट्स होंगे, उसके बाद उन रेट्स पे वो हमें चीज़ें नहीं मिलती। सर जी तुसी भी तो मेंबर हो, तुसी भी कोई दसो क्या रोल है? जी मलिक साहब, उसमें मैं प्राइस कंट्रोल के हिसाब से आपको हवाले से बताऊं कि हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है ना वो बनाई जाती हैं। उसमें पब्लिक के जो स्टेक होल्डर हैं, अंजुमन ताजरान हैं, कंज्यूमर कमेटी के मेंबरान हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तमाम ऑफिस बैरियर जो होते हैं हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, वो 30-40 के करीब मेंबरान जो है वो बनाए जाते हैं। हर दायरे का जो सरबरा है वो भी उसका मेंबर है, डिप्टी कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत सालों से इसका मेंबर हूँ और बनता आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कभी भी प्राइस कंट्रोल कमेटी इतनी फाल नहीं रही जितनी कि होनी चाहिए। अब मुसीबत यह है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो सारे सरकारी मुलाजिम हैं। अब उनके अपने डिपार्टमेंट है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, कोई एक्साइज डिपार्टमेंट से है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से है। उनको प्राइस कंट्रोल के आर्जी तौर पर इख्तियार दिए गए हैं। जी, जब जी। पहले मजिस्ट्रेसी निज़ाम था तो उसके लिए इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट होते थे, जी, जी। उनके पास फुल टाइम होता था, जुर्माने करने का भी, केस सुनने का भी, उसको आगे परसू करने का भी, जो जी, जी। लीगल प्रोसीडिंग होती थी। अब सिर्फ ये है कि वो ना तो उसे प्रोसीड कर सकते हैं, वो सिर्फ जुर्माने करते हैं हुकूमत का टारगेट जो दिया होता है उसे पूरा करने के लिए। अच्छा, रोला टारगेट है। हाँ, आप कहते हैं ना कि जी एक दिन में 3 दिन दुकानों का, वो खास जो उनके मुलाजमिन होते हैं जो लेने के लिए खरीदारी करने के लिए जाते हैं, वो टारगेट कर लेते हैं उस दुकान को कि जी ये मैंने इसे टारगेट करना है, इसने मुझे फलां मौके पर चीज महंगी दी थी। वो बार बार उसी के पास लेके जाते हैं ऑफिसर को। वो इसलिए 3-3 दफा जमाने होते हैं, क्योंकि एक दफा उसने किसी मुलाजिम के साथ, उनके पीएन के साथ, उनके रीडर के साथ या ड्राइवर के साथ कुछ ज्यादती की होती है, इसलिए किए जाते हैं। अब प्राइस कंट्रोल कमेटियां होना तो ये चाहिए था कि डीसी साहब जो रेट जारी करते हैं महाना मीटिंग में, जो उस पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन बदकिस्मती से सवाए जुर्माने के उस रेट पर ना तो सब्जी मंडी में अमल हो रहा है, ना बाजारों में, ना करियाने की दुकान पर, ना गोश्त की दुकान पर, ना किसी चीज पे। अच्छा सर, मैं खुद बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। वैसे नहीं आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप इस हवाले से काफी काम भी किया है, आपने एक इस हवाले से कुछ एनजीओ में भी काम किया। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि क्या हमारे पास जो मेथड है, मतलब जो तरीका कार अपनाया जा रहा है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्या आप समझते हैं वो मुनासिब है कि ना, वो या उस पे काम होने की जरूरत है? देखिए, अगर एक दुकानदार को, एक परचून का दुकानदार, एक परचून फरोश है, उसको जब चीज मिली उतने दामों पे रही है तो वो उसको कैसे कम दामों पे बेचेगा? तो आपके समझते हैं जो मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या वो मुनासिब है कि इस तरह प्राइस कंट्रोल हो सकती है कि सिर्फ उसके पे होमवर्क भी है कि वो किया जाता है कि नहीं किया जाता? मैं इस हवाले से कुछ आपसे पूछना जी, चाहूंगा। मैं ये बताता हूँ आपको कि जो मैग्नीशियम है ना वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। जो आप देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। हम्म, अब देखें, एक घी है। हम्म, अब आप ये पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 8 सालों से घी के रेट फिक्स नहीं हो रहे। मिलों की मर्जी के ऊपर रेट चल रहे हैं, उन्होंने स्टे लिया अच्छा, एज पर गवर्नमेंट प्राइस रेट उस पर लिखा आ जाता है। जी, जी, ऐसे आता है ना जी, चीनी है एज पर गवर्नमेंट डिसाइड। अब मिल जो है वो एक्स मिल जो रेट देती है, ने फर्ज किया कि 100 रुपए किलो चीनी है, तो वो जो उसके ऊपर दुकानदार या अंजुमन जो उनकी एसोसिएशन है, वो चार्जेस डाल के, शॉपर के दूसरे बदन डाल के वो 110 रुपए देती है। तो हुकूमत उसका कुछ भी नहीं कर सकती, ना उसकी डिप्टी वजह कमिश्नर कर सकते हैं, ना प्राइस मजिस्ट्रेट कर उसकी सकते वजह हैं। उसकी वजह यह है कि उनका स्टे चल रहा है। उनका स्टे चल रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें स्टे पे चल रही है। सारी चीजें स्टे पे चल रही हैं। इस तरह घी है वो उनका स्टे पे चल रहा है। अब बदकिस्मती ये है कि अदालतें फैसला ही नहीं कर पा रही।
ٹھیک ہے، نہ کرتی ہیں، نہ ہمارا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے دلچسپی لیتا ہے، نہ جو ہمارا انٹیریئر جو ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے، وہ دلچسپی لیتی ہے، نہ بیوروکریسی دلچسپی لیتی ہے کہ اس پر اپنا لیگل پروسیس کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملا جائے۔ اب جب ڈپٹی کمشنر کے سامنے رائٹ آئے گا کہ جی گھی جو ہے ایز پر گورنمنٹ پالیسی، تو اب ڈپٹی کمشنر کیا کرے گا یا پرائس میں کنٹرول مجسٹریٹ کیا کرے گا؟ ایک تو مہنگائی ہے، اب جو مینوفیکچر ہے اس پہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، جو ہول سیلر ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے، جو پرچون والا ہے اس کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ مہنگائی اس نے آخر ظاہر ہے جو 10,000 روپے جرمانہ بھرنا ہے اس نے، وہ ظاہر ہے ہمارے صارفین سے برا کرنا ہے۔ تو اس کا جو میکنزم ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جو مینوفیکچر ہے اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہول سیلر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹریبیوٹر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر پرچون والے کی طرف آئیں تو میکنزم جیسے پہلے تھا میجسٹریٹی نظام میں کہ ہر چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس تھا، چیک اینڈ بیلنس تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ اتنا ہول سیل ریٹ ہے، اتنا پرچون ریٹ ہے، مینوفیکچر نے یہ دیا ہے، یہ سرکار نے ریٹ نکالا ہے اس کا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اصل میں جو ہمارا میکنزم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہ یعنی کہ جہاں چیز مینوفیکچر ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں ریٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، اس کی طرح کے مختلف ٹیکسز کو جو ہے نا جی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح چوہے صاحب نے بات کی کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جنگ خانہ کے حوالے سے 2022 کے 23 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک لاہور کا ڈیسیجن بھی کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ ڈیسیجن کے مطابق جتنے بھی پنجاب میں جم خانہ کلب ہیں یا جتنے بھی کلب ہیں ان کے ریکارڈ کو پبلک کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں اب تک اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا۔ یقینی طور پہ چوہے صاحب نے کوئی فگر بگایا، فگر میں کچھ آگے پیچھے ہو بھی سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پہ اس سے ضلعی بجٹ کو بہت نقصان ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یقینی طور پہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جہاں تک پرائس کنٹرول کی بات ہے تو صرف پرائس کنٹرول کاغذات میں تو ہو رہی ہے، کیا کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا کبھی دوسرے اکابرین نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو کاغذات ان کے پاس آ رہے تھے کہ اس ریٹ پر وہ چیزیں بازار سے مل بھی رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ تو میرے خیال میں گڈ گورننس کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا، گڈ گورننس کے لیے آپ کو اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ پراپر ہوم ورک ہونا چاہیے۔ مجھے اکمل عمل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ کسی جنگ کے مسئلے پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ چوہے صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔